Good morning, students. This is Neha from Max Classes. Students, in this video, we will solve a question number 4 from the exercise 4.1. Okay. Our question number 4 is this. Prove the following by using principle of mathematical induction for all n belongs to set of natural numbers. The expression is given, which is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus dash 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 up to this is equals to this. Okay. So students, first of all, say this statement is equals to P of n. Okay. P of n के बराबर आपका ये statement है. Suppose let okay P of n is equals to 1.2.3 plus 2.3.4 plus dash 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 and so on. Okay. Now students, by using principle of mathematical induction, we have to prove this statement. That means, first of all, we have to prove that this statement is true for n is equals to 1. Okay. So, step 1, put n is equals to 1. Okay. n is equals to 1 जब हम इस statement में put करेंगे students, then see what we will get in LHS. Okay. LHS में हमारे पास में है n, n plus 1, n plus 2. Okay. n, n plus 1, n plus 2. n की जगह पे 1 पुट किया, 1, 1 plus 1 हो जाएगा 2 and 2 plus 1 हो जाएगा 3. Okay. 3 2s are 6. So in LHS we get 6. Now in the same way we will solve it for the RHS. Okay. RHS में भी आपको n is equals to 1 पुट करना है and your RHS portion is this. Okay. n plus 1, n plus 2, n plus 3 divided by 4. Okay. You have to put n is equals to 1 here. Okay. n is equals to 1 in RHS. When you put 1, 1 plus 1 is 2 into 2 plus 1 3 into 3 plus 1 4 upon 4 get cancelled out. 3 2s are 6. Okay. So RHS we also get 6. Both LHS and RHS are equal. So we can say that the given statement which is P of n is true for n is equals to 1. Okay. Given statement आपका n is equals to 1 के लिए true है. Then what will we do? We will apply here the step 2. Okay. Our step 2 of mathematical induction says if the given statement is true for n is equals to 1, then it should be true for the n is equals to k. Okay. If the given statement P of n is true for the n is equals to 1, then it should be true for the n is equals to k. Okay. So let the given P of n is true for n is equals to k. Then जब ये n is equals to k के लिए true होगा students, then see what will we get. Okay. जो P of n था वो क्या हो जाएगा, P of k हो जाएगा. Okay. n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, k पुट करना है. So this P of n is equals to P of k हो जाएगा. n की जगह पे आपको just k पुट कर देना है. Then you'll get 1 2 3 1 dot 2 dot 3 plus 2 dot 3 dot 4 plus dash 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 plus k plus 1 and k plus 2. Okay. सिंपल जो आपका जो क्वेश्चन n में दिया था उसे आपको k में कन्वर्ट कर देना है. सो इन RHS पोर्शन विल गेट, RHS पोर्शन आपका ये था. ओके. सिंपली यहीं से देख लेते हैं. सो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 अपॉन 4. ओके. सो स्टूडेंट्स योर स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है इट्स ट्रू फॉर P ऑफ k नाउ. ओके. दिस इज सपोज आर इक्वेशन नंबर 1. ओके. If equation number 1. Okay. Now move to our next step. Our next step is step number 3. In step 3,
what will we do? Okay, if the given statement is true for n is equals to k, then we have to prove it that the given statement is also true for n is equals to k plus 1. Okay, now what will we do? We will try to prove that given p of n is also ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. ओके, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी हम इसे प्रूफ करेंगे कि जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी क्वेश्चन में n था वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अब k प्लस 1 पुट करेंगे. जैसे कि आपका जो क्वेश्चन था p ऑफ n था, तो p ऑफ क्या हो जाएगा, अब k प्लस 1 हो जाएगा. नाउ 1.2.3 2.3.4 था आपका क्वेश्चन में. ओके, यहीं से आप चेक कर लेते हैं 1.2.3, तो कितना हो जाएगा ये 1.2.3 2.3.4 प्लस डैश डैश डैश. अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें n की जगह पे क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है. ओके, तो k प्लस 1 पुट करना है, तो ये या तो आप यहीं पे पुट कर दें, k की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें, या फिर आप यहाँ से क्वेश्चन में देखें कि जहाँ पे भी n है वहाँ पे आप k प्लस 1 पुट करें. ओके, तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास में क्या था, n था, तो n की जगह पे आपके पास में अब क्या हो गया, k प्लस 1 हो गया. अब यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2 था, तो अब यहाँ पे हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, k प्लस 1 तो हमने n की जगह पे रखा, प्लस 1 एक्स्ट्रा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था प्लस 1. ओके, ना इसकी जगह पे हम रखेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 2. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपका जो स्टेटमेंट है p ऑफ k प्लस 1 वो कैसा हो गया, 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डैश 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 प्लस ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा आपका k प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका k प्लस 3. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करते करते कहाँ तक आना है, ये मैं आपको रफ पोर्शन में बताती हूँ. रफ में कि आपको एक्चुअली में लेकर के आना है. ओके, जैसे कि आपका स्टेटमेंट यदि k के लिए ट्रू था, ओके, जब ये k के लिए ट्रू था तो आपके पास में क्या आया था कि LHS और ये RHS आपका इक्वल आया था. ओके, जब ये k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो आपके पास में जब ये k के लिए ट्रू था, जब k के लिए ट्रू था, ओके, जब ये k के लिए ट्रू था तब आपके पास में RHS पोर्शन में क्या था, k प्लस 1 था, k प्लस 2 था, k भी था. ओके, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और अपॉन में 4 था. ओके, जब ये k के लिए ट्रू था तब आपके पास में RHS में ये वाला पोर्शन था. ओके, नाउ अगर ये k प्लस 1 के लिए अब इसे प्रूफ करना है, ओके, k प्लस 1 के लिए इसे प्रूफ करना है, तो आपके पास में RHS पोर्शन में सॉल्व करते करते आपको कहाँ तक लेकर आना है उसे. तो अब k की जगह पे क्या हो जाना है, k प्लस 1 हो जाना है, तो आपके पास में RHS में अब क्या आना चाहिए, k की जगह पे k प्लस 1, यहाँ पे भी k की जगह पे k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 रखा और ये प्लस 1 एक्स्ट्रा में. ओके, नाउ इस k की जगह पे भी k प्लस 1 रखा और ये प्लस 2. ओके, सिमिलर वे में ये इस k की जगह पे भी k प्लस 1 रखा और ये प्लस 3 एक्स्ट्रा में. ओके, अपॉन में 4. दैट मीन्स आपको k प्लस 1 के लिए सॉल्व करते करते कहाँ तक आना है स्टूडेंट्स, आपके पास में लास्ट में ये आना चाहिए k प्लस 1 प्लस 1 2, k प्लस 2 k प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और ये k प्लस 4 हो जाएगा अपॉन में 4. दैट मीन्स स्टूडेंट्स आपको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते करते कहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है. ओके, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे दैट मीन्स हम बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, गिवन जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. ओके, सो ये पोर्शन आपको अभी सॉल्व नहीं करना है, इसे आपको रफ में सॉल्व करके रख लेना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर आपको जब ये यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, जब इसको सॉल्व करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाएं तब आप बोल देंगे कि ये n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. ओके, सो दिस इज माई रफ पोर्शन. ओके, ये आपका रफ पोर्शन था. नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आपका ओरिजिनल पोर्शन को सॉल्व करते हैं, विच इज दिस 1.2.3 2.3.4. ओके, तो ये देखो ये 1.2.3 था प्लस ये 2.3.4 था. ओके, प्लस
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना कि जो आपके लास्ट टर्म है वो क्या है, k+1 है, k+2 है, k+3 है। ओके, तो जस्ट इसके पहले वाली स्टेप पे आपको आना है। तो k+1 के पहले वाली स्टेप क्या होगी, डैश 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 लिखा है यहाँ पे मैंने। k+1 की पहली स्टेप क्या होगी, k होगी, +1 है तो k+1 की पहली स्टेप k होगी। k+2 के पहली स्टेप क्या होगी, k+1 होगी। ओके, जस्ट 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। k+3 की पहले वाली स्टेप क्या होगी, k+2 होगी। ओके, सो इस पूरी कंप्लीट स्टेप के पहले, इस पूरी लास्ट टर्म के पहले वाली स्टेप क्या होगी, k+1 एंड k+2 होगी टर्म आपकी, प्लस, और ये लास्ट टर्म तो आपकी थी सही, विच वन इज k+1, k+2 एंड k+3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, ये हो जाएगा आपका, जब ये आपका ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है, यदि आप इसे और इक्वेशन नंबर 1 को मैच करें, ओके, इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये किसके जैसा है, आपका LHS की इक्वेशन 1 के LHS से रिसेंबल कर रहा है। दैट मीन्स इस वाले पोर्शन का वैल्यू क्या है, k+1, k+2 एंड k+3/4। ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर 1, what will we get, 1.2.3 plus 2.3.4 plus dash 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 plus k+1 k+2 is equals to what, ये किसके बराबर था स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 से, बाय इक्वेशन नंबर 1 से ये किसके बराबर था, k+1 k+2 k+3/4 के बराबर था। ओके, ये किसके बराबर था आपका, k इसके बराबर था। तो ये वाला वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो आपके पास में इस पूरे स्टेप की जगह पे सिर्फ कितनी सी स्टेप आ जाएगी, ये वाली स्टेप आ जाएगी। ओके, इसका वैल्यू हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपके पास में, k+1 k+2 k+3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, और ये लास्ट वाली स्टेप बची आपके पास में, k+1 k+2 एंड k+3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से ये तीनों ब्रैकेट हमने कॉमन लिए, k+1 k+2 एंड k+3 इज कॉमन, k+1 k+2 एंड k+3 इज कॉमन। ओके, यहाँ से क्या बचा, k/4 बचा, सो k/4 प्लस यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 बचा है। ओके, सो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या बच रहा है, k+1 k+2 k+3, और यहाँ पे हम एलसीएम दे देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, k+4/4 बचा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व इट ऑन द नेक्स्ट पेज। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या मिला, k+1 k+2 k+3 k+4/4। ओके, हमने LHS वाला पोर्शन को सॉल्व किया और सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। ओके, दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये k+1 को तो हम एज इट इज रख देते हैं। ओके, और इसे हम किस तरीके से लिख देते हैं, k+1+1 लिख देते हैं। ओके, इसे हम लिख देते हैं k+1+2 कर देते हैं, 3 को हमने लिख दिया 1+2, और इसे लिख देते हैं k+1+3 कर देते हैं अपॉन में 4। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको जो रफ पोर्शन में बताया था, आपको जो रफ पोर्शन में आपको ला के दिया था, वो तो क्या कर रहा है, इसके जैसा है, रिसेंबल कर रहा है इसकी जगह, k+1 k+2 है, k+2 को हमने दिया k+1+1 कर दिया। ओके, k+3 था तो k+3 को हमने k+1+2 कर दिया, एंड k+4 था तो k+4 को हमने k+1+3 और होल अपॉन 4। ओके, दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो ये गिवन स्टेटमेंट है, ओके, विच वॉज p ऑफ k+1, p ऑफ k+1 किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ओके, p ऑफ k+1 क्या था आपका, 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डैश 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 प्लस k+1 k+1+1 एंड k+1+2। ये किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, इसके बराबर आ गया, k+1 k+1+1 k+1+2 एंड k+1+3 होल अपॉन 4। ओके, तो आपका
स्टूडेंट जो गिवन स्टेटमेंट था अब वो क्या हो गया, k+1 के लिए भी ट्रू प्रूव हो गया क्योंकि LHS एंड RHS सेम आ गए. सो गिवन P of n is also true for n is equals to k+1. So by principle of mathematical induction, the given statement P of n is true for all values of n where n belongs to set of natural numbers. So students, finally this question has been completed here. Still, if you have any confusion, you can comment me in the comment box, and if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Stay connected with us. Thank you very much.